24/7 न्यूज़ में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत करते हैं। इस वक्त हम लोग हिमिस मॉनेस्ट्री में हैं और आज और कल यानी 2 दिन 28 और 29 2 दिन जो है यहाँ पर हिमिस सेचू यानी कि हिमिस फेस्टिवल मनाया जा रहा है। आप लोगों को बताना चाहते हैं कि इस साल का हिमिस फेस्टिवल जो है वो एक ज़ीरो वेस्ट फेस्टिवल बनाने की कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि अक्सर यहाँ देखा जाता है कि जब भी कोई बड़ा फेस्टिवल होता है या कोई भी इवेंट होता है तो वेस्ट बहुत ज़्यादा जनरेट होता है और वेस्ट जनरेशन को कम करने के लिए हिमिस मॉनेस्ट्री का ये बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव है, बहुत बड़ा एफर्ट है, जहाँ पर वो हिमिस फेस्टिवल को ज़ीरो वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देश विदेश से जो हैं आज टूरिस्ट आ रहे हैं हिमिस फेस्टिवल को विटनेस करने के लिए, उसको देखने के लिए। और साथ ही में लद्दाख के लोग, लद्दाख के यूथ जो हैं वो भी आज यहाँ पर हिमिस ब्यूटीफुल हिमिस फेस्टिवल को, जहाँ का मास डांस बहुत ज़्यादा फेमस होता है जिसको छम्स भी कहते हैं, वो देखने के लिए जो है आज यहाँ पर लोग आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ हिज एमिनेंस ड्रुक्पा थुक्से रिम्पोचे जुड़े हुए हैं। Rinpoche, most welcome on the channel. And today I would like to ask you about the very famous Himis Sechu Himis festival, for which people from all over the world come to see this festival. So for all our other viewers who are not present at the festival today, please brief them a little bit about the Himis festival. Julie, and yes, today we celebrating this festival called Sechu Festival, which is dedicated to the Guru Padmasambhava. The Guru Padmasambhava, who is again we call it the second Buddha also, who have been traveled all over the Himalaya, and he is one of the main. Like after the Buddha, we will say he is the one who have flourished the Buddha Dharma all over especially in the Himalaya. So with our deepest respect and prayer. And we dedicate this Himis festival, and yes, and this Himis festival has been celebrating for many years now. So it is one of the oldest festival in Ladakh.
And spiritually point of view, yes, we consider this as a all include, like now if we talk about all this mass dance and all the dresses and everything, all the ornaments what they are carrying on their hand, everything is of course very very old, and not only old and very holy, we will say, very blissful. And then many of the materials, those are even, I think they are not now, we can't even get it also, because it's a very very rare and it's almost lost from this world. So and then also a spiritual point of view, we consider it as a very blessed, very holy. So for the blessing for all the sentient beings, and particularly this region, for the peace and prosperity and for the good health, and for everybody, that's why this every year we continue with this, and not only that, and also to preserve this rich culture, which of culture of Ladakh and spiritual culture. So this is why we celebrate. And then now hundreds of thousands of people devotees, local and non-local also. Local, I will say, mostly they come, they know the festival every year, but they come to get the blessings. And tourists and non-local, I think they are coming to witness the different cultures. And yes, yeah. Rinpoche, I would also like to ask you, this year the Himis festival is being conducted as a zero waste festival, and it is a big project, the Himis monastery. It's a year-long project where in an effort to convert the Himis monastery into a zero waste monastery. Please brief us a little bit about that. Yes, our master, His Holiness the Gyalwang Drukpa, who has been working tirelessly for to preserve the environment and to protect the environment, and so and also this time with his blessings, and then also with the help of many other small organizations, and also the organization which was founded by His Holiness Live to Love and Himis Monastery. So we decided this time that there are many ceremonies happening in Ladakh, but then at the end, yes, there are many what you call it, benefits, and many positive things are there. But then at the end, we always see that when there's thousands of millions of people gathering, and at the end we see thousands of plastics are there, and lots of wastage of water, food, and plastics especially, and then it's really a disturbing, harming the environment. So we this time we tried our best to make it a zero waste festival. So we tried not to use any of those plastic bottles and plastic bags and all these things. So this is the first time, and then also we are hoping and we are praying and we are trying that all our other organizations and government or non-government or politicians or everybody, I'm hoping that it will be a kind of like a lesson for future, for any of those functions to celebrate the program, whatever the festival, with some what you call it, respect, and for our future, which is in our environment. So this time we started with a small contribution, and then I thought, I hope that it will carry on, and then it will make a difference for our society and for the whole world. Right. Thank you so much for speaking with us, Rinpoche. Thank you so much. Thank you. Julie juste nang da dene gyang tong khang balan ge sim ro dena so la lungtin khang ba su ija changma la dene iga shko ches bola dene aya gindun changme chokne langni tamo je doge je jun dene demba lang dene hemis shu jun jige ma katak chanino dene desh ko pa
Skyapun Gyartas Rinpoche Skundu ne Kutuz ne pala Laksai ka ngata Jartang Chara Zatyo to nok tene tena ne pala Kutuz ne pala tene ngata Guru Ijinuru Skundu ne tene Sishu zinje Hemi Sishu zinje ge ma Cheche Gergas Tangen Botene Stisung Zarin Shkyoda Zateno tene tena tsukla talo ina san tena Nangjin tene Kyabje Rupa Tuksa Rinpoche Skundu ne tene Ujuk se danga tene ma Cheche Gergas Tangen Porste Zateno tene te shkyot pasang tene nge tena jujesak tene dang chespa dunde pala tene ngata ika Guru Ijinuru Skundu na tene chutbul tene Japonis pula jetsesin tene testing mune tene dang chespa gui jak tang diring chichu jak niskola tene Guru Marchen Jun Marchung Jun jige tene te gun tene Jabrim duwa jetsesin tene demberang tene Nija Changmayang Lambok Tuje Jejun Shkochezla tena tsokla daksa ngata I chakla zatkan changmajuna tene chakla zatchezla tene yulso sum jinjenga te yongchen inai jikjik hemis tene chena tsokla marselang tena tsokla changa jinjige yulso sum memang lange changma shkote tene ga chakla sama khong changme zada zatchezen tene हमारे साथ प्रीति चौहान लिटिल ग्रीन वर्ल्ड की फाउंडर जुड़ी हुई हैं। आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि लिटिल ग्रीन वर्ल्ड एक वही ऑर्गेनाइजेशन है, वही संस्था है जो हिमिस फेस्टिवल को हिमिस सेचू को एक ज़ीरो वेस्ट फेस्टिवल बनाने की कोशिश कर रहा है और साथ में हिमिस मॉनेस्ट्री को भी जो है ये ज़ीरो वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रीति, बहुत स्वागत है आपका और आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपकी लिटिल ग्रीन वर्ल्ड की शुरुआत कैसे हुई और ज़ीरो वेस्ट के ऊपर आप कब से काम कर रही हैं? लिटिल ग्रीन की शुरुआत हुई 2019-20 में। मैं एक नरोपा फेलो थी, तो नरोपा फेलोशिप के बाद ही मैंने लिटिल ग्रीन वर्ल्ड शुरू किया एंड हमारा मकसद है कि लोगों को ज़ीरो वेस्ट प्रैक्टिशनर एंड कॉन्जर्वेशनिस्ट बनाए जो भी अपने लेवल पे वो कर सके। एंड हम पूरे लद्दाख में एनवायरनमेंट एजुकेशन का काम करते हैं, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम करते हैं और हमने कारगिल के 2 विलेजेस एंड ले में फे विलेज में 3 जगहों पे ये ज़ीरो वेस्ट स्कूल एंड कम्युनिटी प्रोजेक्ट शुरू किया है, जहाँ पे हमने डस्टबिन इंस्टॉल किए हैं। बट वो डस्टबिन्स को हम डस्टबिन्स नहीं बोलते हैं, हम रिसोर्स बैंक बोलते हैं। कि जैसे कि एक है कि प्लास्टिक बॉटल बैंक है, दूसरा है प्लास्टिक रैपर बैंक है, तीसरा पेपर बैंक है एंड ऐसे ही दूसरे अलग अलग है। और ये डस्टबिन से क्या फ़ायदा होता है कि लोग पहले सोर्स सेग्रीगेशन करते हैं। हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा दिक्कत यह है कि सारा कचरा मिक्स होता है, तो वो सोर्स सेग्रीगेशन हो और एक कम्युनिटी कैसे खुद अपने ही लेवल पे अपना वेस्ट मैनेज करे। और आइडियली हमारा मकसद ये है कि जो भी वेस्ट जमा होता है उसका हम वेस्ट ऑडिट करें, ब्रांड ऑडिट करें और उसके बाद हम पता करें कि इसको कैसे हम वेस्ट को कम कर सकते हैं। और आज भी हमने यहाँ पे ये हेमिस एक ये स्टॉल लगाया है जहाँ पे हमने रखा ही नाम ये है जर्नी टू ज़ीरो वेस्ट हेमिस सेचू। कि इसका मकसद ये है कि हम ये नहीं बता रहे कि हम पूरा ज़ीरो वेस्ट कर चुके हैं, ये इसी समय में ज़ीरो वेस्ट हो चुका है, नहीं, ये एक जर्नी है, ये एक सफ़र है जो हमें छोटे छोटे कदमों के सहारे चलना होता है। एंड सबसे बड़ी चीज़ इसमें यही है कि एक बार में चेंज नहीं आता है, ये बिहेवियरल चेंज है और वो बिहेवियरल चेंज धीरे धीरे करना है। तो आज के ये हेमिस सेचू में जितने भी स्टॉल्स लगे हैं उन सबको एक मैसेज गया था। गेन चगजो जो हेमिस के मैनेजर है उनके पास से मैसेज गया था कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक नहीं यूज़ करना है, मिनरल वाटर बॉटल यूज़ नहीं करना है, रीयूजेबल कटलरीज देनी है। तो हम बताना चाहेंगे कि सारे भी जितने भी स्टॉल्स लगे हैं कि उस सब में हमने खुद पर्सनली जा के देखा है, चेक किया है कि मिनरल वाटर बॉटल्स नहीं दिए गए हैं। उसी के साथ 3 जगहों पे हमने वाटर फिल्टर भी रखा है कि यहाँ पे भी हमारे स्टॉल पे भी हमने लोगों के लिए पानी भरने का ऑप्शन रखा है। और साथ ही में हमें फिर भी पता है कि और भी दूसरा जो कचरा है जो हो रहा है, पर जैसे मैंने बताया इट्स अ जर्नी कि धीरे धीरे एक एक करके स्टेप्स होके इस साल हमने मिनरल वाटर बैन किया है, अगले साल दूसरे ऑल्टरनेटिव्स लाएंगे और दूसरे और चीज़ें करेंगे। ऑल्टरनेटिव्स की बात करूँ तो हमने हमारे यहाँ पे स्टॉल पे भी बैम्बू टूथब्रशेज़ रखे हैं कि लोगों को पता चले ऑल्टरनेट्स होते क्या है। एंड सेम वे ज़ीरो वेस्ट जो हमारा रिसोर्स बैंक का प्रोजेक्ट है उससे पता चले कि कैसे कूड़ा अलग करना है और एक कैसे हम एक स्टेप बढ़े कि कौन सा कूड़ा ज़्यादा है और उसको कैसे कम करने के लिए काम कर सकते हैं। ये हमारे अलग अलग रिसोर्स बैंक्स है जो कल ही फैब्रिकेट होके आए हैं और जैसे आप देख सकते हो कि इसमें प्लास्टिक बॉटल का एक बैंक है, प्लास्टिक रैपर का बैंक है,
टेट्रा पैक का, टिन एंड पेपर का। और इसका वही है कि जैसे सोर्स पे ये सेग्रीगेट होगा और हमें एक आइडिया आता है कि कौन सी तरह का वेस्ट हमारे पास ज़्यादा जमा होता है। अगर अभी आप देखें तो अभी ये अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, इसका हमें एक लोकेशन डिसाइड करना है और वो लोकेशन डिसाइड होके और पूरा अच्छी तरह से उसके ऊपर शेड भी आएगा। और फिर ये आज हमने हिमिस स्टैचू के लिए यहाँ पे रखा है यूटिलाइजेशन के लिए, बट आइडियली इसका हिमिस फेस्टिवल के बाद इसका लोकेशन शिफ्ट हो जाएगा। हिमिस मॉनेस्ट्री के हिमिस फेस्टिवल को देखने के लिए आज हम लोग यहाँ पर आए थे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज और कल हिमिस सेचू मनाया जा रहा है। ड्रुक्पा थुक्से रिम्पोछे का यही कहना है, उन्होंने बहुत ही विस्तार में हिमिस फेस्टिवल की महत्वता को समझाया है और किस लिए इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। और साथ ही में इस साल का जो सबसे बड़ा एक हिमिस मॉनेस्ट्री द्वारा एक इनिशिएटिव जो लिया जा रहा है, हिमिस फेस्टिवल को और हिमिस मॉनेस्ट्री को ज़ीरो वेस्ट फेस्टिवल और एक ज़ीरो वेस्ट एरिया बनाने की पूरी प्रयास की जा रही है। और ये प्रयास लिटिल ग्रीन वर्ल्ड नाम की एक संस्था द्वारा की जा रही है। अक्सर हम देखते हैं कि बड़े फेस्टिवल्स में और बड़े बड़े इवेंट्स में जो हैं, जहाँ पर ज़्यादा भीड़ जमा हो जाती है, वहाँ पर उतना ही ज़्यादा वेस्ट जनरेट हो जाता है। तो उस फेस्टिवल की जो एक पवित्रता है, जो एक महत्वता है, वो वेस्ट जनरेशन से वो पवित्रता बहुत कम हो जाती है और उस जगह की होली सैंक्टिटी पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है जो हिमिस मॉनेस्ट्री ने लिया है, एक ज़ीरो वेस्ट का इनिशिएटिव। वेस्ट जनरेशन को किस तरीके से कम किया जाए और साथ ही में हम सब की भी और आने वाले सारे दर्शकों की, आने वाले सारे लोगों की यहाँ पर यही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो कम से कम वेस्ट को जनरेट करे और ऐसी फेस्टिवल्स की सैंक्टिटी को प्रिजर्व करे। और लद्दाख जितना सेंसिटिव एक एरिया है, उसको खूबसूरत रखने में और उसको कार्बन न्यूट्रल बनाने में, उसको एक सेंसिटिव जगह को हार्म ना करने के लिए जो एक हम लोगों का एक फ़र्ज़ बनता है, उस फ़र्ज़ को बनाए रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बने रहिए, लगातार अपडेट्स आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। रिगजिन वांगमो के साथ मैं ज़ैनब संधू, JK 24/7 न्यूज़ के लिए हिमिस लेह लद्दाख से।